Good morning, students. How are you all? Welcome to the online class of Geeta Global School. So, students, today we are going to read GK from your Together with General Awareness book, chapter number 8. Okay, so bounty of Mother Nature. So, first, let's understand these points and then we will match this with this. Okay. See, sometimes people suffer from certain ailments. Ailment means problem, diseases. Okay. There are many plants present in the nature that can help them recover from these ailments. You know that there are many plants in our nature that are being used for medicinal purposes, and these plants can help us to get relief from these diseases. Take a pic from the cradle of Mother Nature in the box given below. So here are list of plants which helps in curing some kind of diseases or ailments. There are also hints that would help you pick the best herb for the disease each person is suffering. तो यहाँ पे बीमारियाँ दी गई हैं कि अगर ये सारी बीमारियाँ होंगी तो आप यहाँ से कौन से प्लांट यूज कर सकते हो उनको दूर करने के लिए. तो पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर हम मैच करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो लुक एट नंबर ए. व्हाट इज इट? जिनसेंग. तो जानते हैं इसके बारे में. इट इज अ चाइनीज हर्ब. हर्ब मतलब बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं, इसके लीव्स होते हैं. दैट हैज अ मेंटल रिवाइटलाइजिंग प्रॉपर्टीज. ओके, तो दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मेंटल. Okay, number 2, aloe vera. About aloe vera, I think every one of you know. So this plant produces a clear gel. उसके से एक लिक्विडी जेल रहता है एलोवेरा के प्लांट में, that is used for both medicinal as well as cosmetic purposes. तो हम इसको दवाइयों के लिए भी यूज कर सकते हैं, दवाइयाँ बनाने के लिए, और कॉस्मेटिक पर्पसेस ऑल्सो. ब्यूटी क्रीम या लड़कियाँ कोई सारी क्रीम लगाती हैं उसमें भी ये चीजें एलोवेरा यूज होती हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिड्यूसिंग स्टार्स. तो जो हमारे छाई या काले दाग हो जाते हैं फेस स्किन पे, क्रीम बनती है, ये उसके लिए भी यूज हो सकता है. थर्ड वन, बैसिल. बैसिल मीन्स व्हाट? तुलसी. तो आपको पता ही है कि ये कोविड के टाइम में भी तुलसी कितने काम आ रहा है. हम इसको चाय में डाल सकते हैं, इसको हम काढ़ा बना के पी सकते हैं. दिस इज वेरी गुड फॉर आवर बॉडी, फॉर आवर throat. So let's see, this is a very significant plant in the Indian region and can be used for the treatment of itching skin. अगर स्किन में कोई itching हो रही है, खुजली हो रही है, या किसी कीड़े ने काट लिया है, या स्किन इन्फेक्शन है, तो you can use. और you know that हम वर्शिप भी करते हैं इसको. नंबर डी, आर्टेमिसिया. So its bitter taste is used in प्रोवाइडिंग फ्लेवर टू सम बेवरेजेस. तो कड़वा होता है टेस्ट में, और बेवरेजेस मतलब टी, कॉफ़ी या कोई ड्रिंक बनाते हैं, ये कड़वा टेस्ट उसमें देने के लिए, ये फ्लेवर उसमें हम यूज़ कर लेते हैं उसको फ्लेवर देने के लिए या लिक्विड्स बनाने के लिए. इट ऑल्सो हैज़ अ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ फॉर स्टमक और गॉल ब्लैडर में कोई प्रॉब्लम हो तो उसके लिए भी ये यूज़ होता है रिलीफ पाने के लिए. मर. ओके, मर. This substance is used for the treatment of mouth infections. If you have got any kind of mouth infection, myrrh is used for the treatment of mouth infections. It is also used in perfumes. Perfumes में scent लाने के लिए भी myrrh use होता है. And this plant where it is found in northeast African places. Next one, marjoram. So the ancient Greeks also knew the medicinal properties of this plant. तो एशियन ग्रीक जो पुराने ग्रीक में ही इसका पता था कि इसकी क्वालिटी क्या है इस प्लांट की. इट हैज़ बीन यूज्ड सिंस एजेस. सो दिस इज यूज्ड फ्रॉम वेरी लॉन्ग टाइम टू एड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ओके, लास्ट वन, यूकैलिप्टस. So the oil produced from this tree is used extensively in the preparation. तो in these plants what happens, oil is there, और वो oil किस लिए यूज होता है? For the preparation of medicines for chest rubs and cold. मतलब कि सर्दी खांसी हो तो चेस्ट में कुछ लगाने के लिए जो भी ऑयल इस प्लांट से निकलता है, हम ऐसी कोई दवा बनाते हैं.
and trees form a whopping 75% of the tree population of Australia. So what happens in Australia? This tree is found around 75%. Okay. Now see, over here diseases are being given. Let's find out which plant can be used to cure these diseases. First one, गीना हैज़ गॉट पिम्पल्स और ओवर हर फेस, उसके फेस में पूरा पिम्पल्स भरा है, तो यहाँ से वो कौन से प्लांट्स को यूज कर सकती है ये पिम्पल को दूर करने के लिए? नंबर बी, दैट मीन्स इन नंबर 1 यू विल राइट नंबर बी. सो विच इज बी नंबर? एलोवेरा. ओके. नंबर 2, बॉस प्रॉब्लम इज हिज वीक मेमोरी, दिमाग बहुत कमजोर है. सो विच प्लांट्स ही कैन यूज टू क्योर हिज डिसीजेस? नंबर ए, जिनसेंग. ओके. नंबर 3, करेन हैज़ अ वीक डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट बहुत कमजोर है, डाइजेशन बहुत कमजोर है. सो विच वन? एफ नंबर, मर्जोरम. 4th, फ्रैंक इज ऑलवेज स्नीजिंग एंड कफिंग, हमेशा सर्दी खांसी हुआ रहता है. सो विच प्लांट कैन बी यूज टू क्योर दिस डिसीज? यूकैलिप्टस. नंबर जी. Douglas is avoided by most of his fellow classmates as he has bad breath. मुंह से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, उसकी क्लासमेट्स उससे दूर भागते हैं. सो व्हाट कैन ही, विच प्लांट कैन ही यूज टू क्योर दिस प्रॉब्लम? नंबर ई. सो ई इज मर. ओके. 6th number, Tina is suffering from anemia. Anemia means deficiency of blood and has many roundworms. एक तरह का कीड़ा होता है जो पेट में हो जाता है, and threadworms in her stomach. So which plant she can use to be free of this disease? Number D. D is Artemisia. Okay, last one. George has been recommended to have the leaves of this plant as they have fungicidal properties. This plant can be easily found in homes also. तो कौन सा है ये? नंबर सी, basil. That means तुलसी. Okay. Now see children, page number 13. Have fun and learn. So 6 plants are there. You have to recognize the picture of this plant and learn them. So let me explain you peepal tree. I hope all of you have seen a peepal tree. So peepal tree is a sacred tree by the Buddhist. बहुत इसको sacred पूजनीय माना जाता है. The leaves of these trees have somewhat extended tip. आपने पीपल का लीव देखा होगा, बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं. नंबर 2, दिस इज अ स्पीशीज ऑफ फिग ट्रीज. तो बैनियन ट्री एक तरह का फिग ट्री का टाइप होता है. दिस ट्री स्प्रेड्स अक्रॉस अ लार्ज एरिया एज इट ग्रोज. एरियल शूट्स, बहुत सारे शूट्स निकलते हैं, बहुत जगह में फैल के ये प्लांट होता है. दैट ग्रो इनटू सॉइल फॉर्मिंग एडिशनल ट्रंक्स. ओके. नंबर 3, एकाशिया ट्री. दिस ट्री इज मोर कॉमनली नोन एज बबूल ट्री. बबूल ट्री को ही एकाशिया ट्री बोलते हैं, है ना. Its leaves are spread like small petals. छोटे छोटे पत्ते होते हैं on either side of the central stem. Number 4, these trees are also known for their edible fruit mulberry. तो शहतूत मलबरी ट्री, इसमें एक फ्रूट होता है शहतूत, ये बहुत फेमस है शहतूत. ठीक है. 5 number, अशोका ट्री इज ऑल्सो वेरी फेमस and the branches of this tree droop over each other. देखो कैसे एक दूसरे के ऊपर ड्रूप किए गए हुए हैं. 6 लास्ट वाला गुलमोहर ट्री, इसमें देखिए फ्लावर्स भी हुआ है. दिस ट्री हैज ऑरेंज कलर फ्लावर्स and each of its flowers has fern-like leaves. The leaves of this tree stem out from a central branch with leaves spreading out broadly. एक यहाँ सेंट्रल ब्रांच से निकलता है, पूरा फैला हुआ है. फूल भी बहुत सुंदर लगता है अगर आपने ये पेड़ देखा होगा तो. Now children, you will learn the 2 pages and your today's home assignment is to do page number 14. Scratch your brain number 1. So question A, B, C, D are there. You will get all the answers from the previous pages you have learned till now. So do it for homework. Thank you.